Hello students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Students, in our last class we have completed exercise number 5.2 and today we will start exercise number 5.3. बेटा 5.2 एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ। ठीक आ, हुण असी नैक्सट जिहड़ी एक्सरसाइज करनी आ उहदे विच असी चांस एंड प्रोबेबिलिटी बारे पढ़ना है। ठीक है, ये तुसी 7th क्लास दे विच एक 4th चैप्टर दे विच ना 4.4 सी आई थिंक सॉरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4th ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟ 3 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਚਾਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੂਡੇ ਅੱਜ ਰੇਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮਸਟ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੰਪਾਇਰ ਉਦੋਂ ਟੌਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਇਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਇਨ ਦੀ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਨ ਦੀ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਟੇਲ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੈੱਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਬੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੈੱਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੈੱਡ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਕਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਕਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਆਉਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਹਦੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੈੱਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੈੱਡ ਵਾ, ਨੰਬਰ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡ ਆਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਵਾ? 1 ਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ 2, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ? 1/2। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈੱਡ 1/2। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P(E), ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੇਲ ਦੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਲੱਗਣਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੇਲ ਮਿਲੇ। ਟੇਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ? 1 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 1/2।
बेटा इस एक्सरसाइज दे विच ना मेन शॉर्ट क्वेश्चन आउंदे आ, तीन क्वेश्चन मेन बनते आ। की बनते हैं हुण जे तुसी नोटिस करो 1/2 का मतलब हुंदा हाफ। 1/2 का मतलब हुंदा हाफ। तुसी जिन्ने भी सम सॉल्व करोगे तुसी वेखोगे कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 तो छोटी हुंदी आ। ठीक आ, जिहड़ी प्रोबेबिलिटी हुंदी आ ना वो हमेशा 0 तो वड्डी हुंदी आ ते 1 तो छोटी हुंदी आ किसी इवेंट दी। 0 तो वड्डी हुंदी आ, 1 तो छोटी हुंदी आ। समझ लगी बेटा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा वा कि प्रोबेबिलिटी दी रेंज की हुंदी आ। प्रोबेबिलिटी दी रेंज की हुंदी आ 0 to 1। ठीक है, ये 0 ते 1 दे विच अकर करदी आ। फिर बेटा एक चीज़ हुंदी आ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर का मतलब कि यकीनी, यकीनी तौर पर होने वाली चीज़। मान लो कि मैं कोई डाई थ्रो करदी हाँ, डाई दी आउटकम्स की होंदियां वा? आउटकम्स ऑफ डाई की होंदियां वा? 6 नंबर्स तक होंदे ना, 1 2 3 4 5 6। मैं कहनी हाँ कि मेरी डाई दे उपर 2 आवे, पॉसीबल आ? जे मैं डाई थ्रू करा बार बार पॉसीबल आ, हो सकता 2 पहली थ्रू च ही आ जाए, हो सकता चौथी च आ जाए। ठीक है, पॉसीबल है ना, श्योर इवेंट आ। ठीक है, श्योर इवेंट की हुंदा जिहड़ा होना होना वा। ठीक है, ओहदी प्रोबेबिलिटी जिहड़ी हुंदी आ वो हमेशा 1 हुंदी आ। एक हुंदा इम्पॉसीबल इवेंट, एक हुंदा इम्पॉसीबल इवेंट। इम्पॉसीबल इवेंट हुंदा वा जिहड़ा कदी भी नहीं हैपन हो सकता। जे मैं कहां कि मैं डाई थ्रो कीती आ ते मेरे उपर 7 नंबर आवे, इज़ इट पॉसीबल? डाई दे उपर तो नंबर ही 6 हुंदे आ, दैन 7 किद्दां आ सकदा उहदे उपर, है ना? सो वो की हुंदा वा इम्पॉसीबल इवेंट। ते इम्पॉसीबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की हुंदी आ 0। सो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ, तुसीं नोट कर लिओ। प्रोबेबिलिटी मैं जस्ट इन्हां दे प्रोबेबिलिटी मैं जस्ट ना इन्हां दे बेटा तुहानूं रिमार्क्स लिखाउण लगी हाँ। प्रोबेबिलिटी अकर्स बिटवीन 0 and 1, ये 1 मार्क्स वास्ते क्वेश्चन आ। दूजा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नोट करने हैं तुसी बेटा अपनी कॉपीज़ के उपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसीबल इवेंट इज़ 0। तो एक चीज़ होर नोट करनी है तुसी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ गिवन इवेंट, सारिया प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे ना वो 1 हुंदा। फॉर एग्जाम्पल मैं आ क्वेश्चन सॉल्व किया सी ना हैड ते टेल वाला, हैड की प्रोबेबिलिटी भी 1 सी, है ना? टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 सी। ते जे मैं इन्हां दोवां नूं प्लस करदा कितना आंसर आया? 1। किसी भी इवेंट दियां जिन्नियां भी प्रोबेबिलिटीज़ आउणगियां उन्हां दा सम कितना हुंदा? हमेशा 1। सो बेटा ये 4 पॉइंट्स तुसी नोट करने अपनी कॉपी के उपर। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ते 1 दे विच अकर करदी आ। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हुंदी आ, इम्पॉसीबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हुंदी आ, ते किसी गिवन इवेंट दियां प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना हुंदा वा? 1 हुंदा वा। ठीक है, मैं एक चीज़ तुहानूं एक एग्जाम्पल होर दिंदी हाँ। मान लो मैं डाई थ्रो कीती आ, मैनू चाहिदा वा प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग 2 आने के किन्ने को चांसिस आ? की फॉर्मूला हुंदा? ये बेटा ये फॉर्मूला भी नोट करना वा, वो मैं तुहानूं नैक्सट पेज ते करवाउणी आ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग 2 किन्नी वारी आ सकदा वा? इक्को वारी है ना 2। नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस इक्को वारी है 2। ओवर टोटल केसिस किन्ने आ? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स किन्नियां? 6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी की है? 1/6।
इसी तरह 3 आउण दी 1/6, 4 आउण दी 1/6, 5 आउण दी 1/6, 6 आउण दी 1/6, 1 आउण दी 1/6, क्योंकि सारे नंबर एक एक टाइम्स ही आ ना डाई दे उपर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी की आ जानी उहदी 1/6। बेटा एक ना फॉर्मूला होर नोट करना तुसी, आ वाला जिहड़ा मैं तुहानूं लिखवाया सी, इदां भी लिख सकदे आ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये तुसी फॉर्मूला नोट करना अपनी कॉपी के उपर। ये ते डिपेंडेंट साडे सारे नैक्सट क्वेश्चन ये उपर ही डिपेंड होणगे साडे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण मैं तुहानूं 5 चीज़ां नोट करवा दित्तियां, 4 ये वालियां इधर करवाइयां जिहड़ियां, ते 5वां फॉर्मूला। ठीक है, हुण असीं शुरू करांगे। आई थिंक बेटा तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर होया होएगा कि प्रोबेबिलिटी हुंदी की आ, किसी चीज़ की की पॉसीबिलिटी अकर होने दी, किन्नी कु पॉसीबिलिटी किसी चीज़ के अकर होने दी। ठीक है, इनू बोलते असी प्रोबेबिलिटी। ये की हुंदा वा, जिन्नियां चीज़ां साडे हक च वा ओवर टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस ओवर टोटल आउटकम्स। तो आउटकम्स की हुंदियां वा, जिन्ने उहदे आंसर आ सकते हैं, जिन्ने उहदे रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप तुहानूं क्लीयर हो गई होएगी। नैक्सट एक्सरसाइज नंबर 5.3 आ, ਉਹਦਾ फस्ट क्वेश्चन वेखो। क्वेश्चन नंबर फस्ट हैगा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपैरीमेंट्स। आ देखो एक्सपैरीमेंट किया, विनिंग स्पिनिंग व्हील हैगा वा कोई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ए आ सकता ਜਾਂ बी ਜਾਂ सी ਜਾਂ डी। ए चलो 2 ਵਾਰੀ ਆ, बट मतलब ए ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ गिनना सी कि आउटकम्स ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ए पार्ट आउटकम्स फॉर स्पिनिंग ए व्हील की आ जानिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, सैकेंड हैगा पार्ट टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगैदर, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगैदर बी पार्ट, 2 कॉइन्स कट्ठे सुट्टने आ। आउटकम्स बेटा आउटकम्स ते प्रोबेबिलिटी फर्क पता लग गया ना तुहानूं। आउटकम्स हुंदा वा जिन्ने रिजल्ट उहदे आ सकते आ, ते प्रोबेबिलिटी की हुंदी आ जिहड़ी साडी रिक्वायर्ड चीज़ वो सानूं मिलण दे किन्ने क चांसिस आ। आउटकम्स की हुंदा वा जो उहदे टोटल आंसर आ सकते आ, ते प्रोबेबिलिटी दा की हुंदा वा कि जिहड़ी चीज़ सानूं चाहीदी उहदे किन्ने क चांसिस आ सानूं मिलण दे। ठीक है, हुण 2 कॉइन्स सुट्टण, इस चीज़ का बेटा फर्क ध्यान दे विच क्वेश्चन जो पढ़ना ना उदों वेखना सानूं उन्होंने आउटकम्स पुछया वा कि प्रोबेबिलिटी पुछया, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो के क्वेश्चन गलत कर देंगे। आउटकम्स हुंदा जो टोटल आंसर आ सकते उहदे। ठीक है, आउटकम्स फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगैदर। 2 कॉइन सुट रही मैं, मान लो मैं मेरे दोवां कॉइन्स के उपर ही हैड आ गया। एच स्टैंड्स फॉर हैड एंड टी स्टैंड्स फॉर टेल। मान लो मेरे पहले कॉइन के उपर भी हैड वा, दूजे कॉइन के उपर भी हैड वा। हो सकता मेरे पहले कॉइन के उपर हैड आ जाए, दूजे के उपर टेल आ जाए। हो सकता पहले कॉइन के उपर टेल आ जाए, दूजे के उपर हैड आ जाए, तो हो सकता दोवां के उपर ही टेल आ जाए। ठीक है, सो ये रिक्वायर्ड आउटकम्स हैगियां वा। ठीक है बेटा, आउटकम्स रिक्वायर्ड है। हो सकता कि मैं 2 कॉइन सुटे दोवां ते हैड आ जाए, हो सकता पहले ते हैड दूजे ते टेल आ जाए, हो सकता पहले ते टेल दूजे ते हैड आवे, हो सकता दोनों ते टेल्स आ जाए। ठीक है, ये साडियां की हैगियां वा टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये कंसैप्ट नूं तुसीं चंगी तरह समझना वा। तो क्वेश्चन नंबर फस्ट तुसीं मैं तुहानूं करवा दिता, तो सैकेंड क्वेश्चन तुसीं ट्राई करना वा, बट मैं भी तुहानूं कंटिन्यू करवाऊँगी कल, बट तुसीं एक बारी ट्राई जरूर करना वा। कि क्वेश्चन हैगा, वैन अ डाइज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन ईवेंट गैटिंग ए प्राइम नंबर। कि डाई थ्रो करते ना जो असी प्राइम नंबर दियाँ की आउटकम्स हो सकदियां वा।
ਈਵਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੁਡੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।